सम्मान में सैल्यूट करेगा। सैल्यूट। आनक दास 1 2 1 2।
आज आप सबको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि काश हमारे वहां पे भी विद्या भारती की स्कूल होती तो मैं भी यही परंपरा से बड़ी होती। एक मिनट नीचे करो क्या। मैं हिंदी बोलने की कोशिश करूंगी, लेकिन अगर बीच बीच में अंग्रेजी आ जाए तो आप क्षमा कर दीजिए। When I look at my life and see that the whole universe is sustaining me and my existence, I bow down in humility. पूरा सृष्टि मेरे जीवन को सस्टेन कर रहा है। The whole world is sustaining my existence. So why do I say that? मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि हमारे सबके पास 5 ऋण है। हम सबके जीवन में 5 ऋण है। और कर दीजिए। ठीक है। तुलसीदास रामायण में कहते हैं कि gratefulness is the greatest virtue and being ungrateful is the greatest sin. तो हम सबके जीवन में हमारे पास 5 ऋण है। पहला ऋण है देव ऋण। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में कोई भी नेचर में जो एलिमेंट है या नेचुरल एंटिटी जो बोलते हैं उनको हम देवी या देवता के स्वरूप में उनको पूजते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द सूर्य देवता, the sun. If I have to ask you a question, can we live without the sun? No. Why not? Because it gives us the energy. That's the only source of energy, right? Plants को सूर्य देवता चाहिए क्या? चाहिए ना? Without it, there is no process of photosynthesis. So the sun is very important. If the plants don't produce food, तो हम क्या खाएंगे, है ना? तो सूर्य देवता is important. Today we are talking about solar energy. Without the sun, we can't be alive. We can't exist. Another such Devi is Prithvi Akarshani Shakti, the gravitational force. Without this Devi, right now we will all be flying. हम सब उड़ रहे होते। It is only because of the Devi we are grounded today. इससे कई सारे देवता है, देवी देवता है। वायु देवता, इंद्र देवता, जल देवता, पृथ्वी माता। Is there any other life source in any other planet apart from Earth? No. सिर्फ अर्थ पे ही humans live, right? Yeah. So पृथ्वी माँ भी हमें सस्टेन करते हैं, हमारे एग्जिस्टेंस को सस्टेन करते हैं। So अगर हम देखें तो ये सारे देवी देवता के ऊपर हमारा एक ऋण है, देव ऋण। इनको हम कैसे how can we give back, or what should we do? We can be grateful that I exist because you exist. If you don't exist, I don't exist, right? है ना? तो we must respect सूर्य देवता को हम नमन करते हैं, धरती माँ को हम नमन करते हैं। We must respect and we must preserve them, ताकि अगले कुछ generations को भी इसका लाभ हो, ठीक है ना? The second ऋण is भूत ऋण. भूत ऋण means the debt that I have for the animals and plants. If I have to ask you a question, कल हम अगर उठेंगे और एक भी प्लांट नहीं है, एक भी झाड़ नहीं है, तो क्या आप और मैं जी सकते हैं? नहीं। क्यों? It is the only source of oxygen is from the plants. हम नहीं जी सकेंगे। और प्लांट से ही हमको खाना मिलता है,
it produces food for us, right? है ना? Another example, animals. Can we exist without the animals? No. Sadhguru says, if all the bees were to disappear from this planet, you and I have only 8 years to live. Why? Because bees help in pollination. Bees help in pollination. Even earthworms, they help in aerating the soil, right? अगर earthworms नहीं है तो हम सब नहीं जी पाएंगे. Bees नहीं है तो we cannot exist. Even if you look at the animals, जैसे गौ माता है, जितने भी animals है, there is a perfect balance. एक इकोसिस्टम अपना जो है, अगर कुछ भी डिस्टर्ब हो जाता है तो क्या होता है? We cannot exist. The balance will go off. So ये एक देव ऋण है. Sorry, भूत ऋण. भूत ऋण is the debt that I have for all the plants and animals or all the other creation apart from the human beings. How should we pay back this debt? We must protect them. We should not cut down the trees. We should not harm the animals. We should at least, अगर हम सबको देखते हैं तो we should be grateful that I exist because you exist, है ना? Now the third ऋण, तीसरा जो ऋण है हमारे पास वो है ऋषि ऋण. हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे उन्होंने हम सबको बहुत, फर्स्ट ऑफ ऑल एक कल्चर, हमारा जो हिंदू कल्चर है वो दिया है. सुश्रुत, ऋषि सुश्रुत जी, उन्होंने, यू नो व्हाट ही डिड, राइट? हु एल्स? whom do you know? आर्यभट्ट. आयुर्वेद में किन्होंने काम किया था? ऋषि पतंजलि, है ना? सॉरी, योग में किया था. आयुर्वेद. सो बहुत सारे ऋषि मुनि हैं जिनका ऋण है हमारे पास. If I have to give you one example, Maharshi Vedvyas. Maharshi Vedvyas did one of the biggest thing. He compiled the 4 Vedas. ये जो वेद थे ना, they were all over, scattered भारत में. तो उन्होंने क्या किया? उनको compile किया. And he gave us 4 different Veds. And he also gave us Bhagavad Gita. अगर महर्षि वेदव्यास जी नहीं होते तो हमको भगवत गीता नहीं मिलता. Today Bhagavad Gita is used in many universities to teach the principle of management. So we have to be very grateful that there is so much we've received from our rishis. ये एक ऋण है. How do you pay back this ऋण? We pay back this ऋण by at least learning what they've left for us, है ना? आर्यभट्ट जिन्होंने हमको ग्रेविटेशन फोर्स का दिया था. Do we know all these things? We must know. फिर चौथा ऋण है पितृ ऋण. आज हम जो है, हम हमारे माँ बाप के वजह से थे. We are who we are today because of our parents. हमारे parents जो भी है वो भी उनके parents के वजह से, और ऐसे ही एक change आता है. हमारे माता पिता ने सब कुछ दिया है हमको. They gave us everything, food, shelter, clothing, सब, है ना? Basic needs जो कहते हैं. जब हम चल नहीं पा रहे थे तो उन्होंने हमको पकड़ा. जब हम खा नहीं पा रहे थे तो उन्होंने हमको फीड किया. पूरी रात सोचिए हम लोग जगते थे. वो लोग माँ जगते थे हमको सुलाने के लिए. So there is so much debt that we have towards our parents. They've given us so much. We must be grateful to them.
we must be there for them when they need us, है ना? So that is how you pay back this debt. And the fifth rule is समाज ऋण. समाज ऋण का एक यहाँ पे ही मैं विटनेस कर रही हूँ हमारे टीचर्स. How much do they give us? How much do they sacrifice so that they can make us who we are? The doctors, जो भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में या पानी के डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो सब इंश्योर कर रहे हैं कि हमारा जीवन सुखी हो. माने मैं अफ्रीका से आई हूँ, कुछ जगह भारत में भी पानी नहीं है. बहुत लोगों को बहुत चलना पड़ता है, लेकिन हमको चलना नहीं पड़ता है. हमको पानी चाहिए तो टैप में जाकर टैप ही खोलना है और पानी आ जाता है. हमारे पास बिजली भी है, we just need to switch on, तो बिजली भी आ गई. तो आप सोचिए कितने सारे लोग काम कर रहे हैं बैकग्राउंड में ताकि हम अच्छे रहे, हम सुखी रहे. Another example is police force, army है, they make sure that we are protected. So समाज का भी एक ऋण है. कितने ऋण देखे हमने? 5. पहला ऋण देव ऋण, दूसरा ऋण भूत ऋण, तीसरा ऋषि ऋण, चौथा पितृ ऋण, 5वां समाज ऋण. यहां से ही जवाब आ रहे हैं. Okay, so we've seen these 5 different runes. So आज के जमाने में अगर देखा जाए तो there is Mother Earth Day, there is ये सारे days, Teacher Day. हमारे जमाने में अभी हमारे एंशिएंट टाइम्स में भी होते थे गुरु पूजन दिन, है ना? और हमारे लिए सभी दिन थे. एक दिन नहीं था साल का, सब दिन हम ये दिन मनाते. The World Environment Day, the World Water Day, the World Earth Day. See, सारे they were already a part of our culture, so we didn't have to have a separate day for this. So what I'm trying to say is, हम लोग इतने लकी हैं कि we are born in a great civilization. हमारा जो सनातन धर्म है, हम लोग बाहर रहते हैं. We understand that our culture has so much to offer to the world. हम ही believe करते हैं वसुधैव कुटुंबकम. The whole world is one family. Not just human beings, but plants, animals, sab. We have to take care of them. We're the only ones who believe Krunavanta Vishwamaryam. Let us make this world a noble place to live in. So, एक ऋण है हमारे पास. So let us make sure that at least we know, we preserve, and we give this to the next generation. Yeah, otherwise क्या होगा? आप सोचिए, अगर एक generation ने they didn't give us the language, then what will have happened? आज हम वो भाषा नहीं बोल पाते. So you can imagine something which has come over to us over a period of time. तो वो हमको चलाना है. स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि a society does not go down because of the activities of bad people. It goes down because of the inactivity of the good people. अगर अच्छे लोग हैं समाज में, वो कुछ नहीं करेंगे, तभी एक समाज नीचे जाता है. बुरे लोगों के काम से नहीं, अच्छे लोगों का के अच्छे लोग जो काम नहीं करते उसके वजह से. So we have a big responsibility कि अगर हम सबको ऐसा लगता है कि मेरे पास ये 5 ऋण है, और कृतज्ञता, एक ह्यूमिलिटी, ग्रेटफुलनेस, कृतज्ञता. We are so grateful. कृतज्ञता. Okay, so we are so grateful that
I exist because of so many things in the nature, so many people. So I must also give back. हमको भी कुछ करना चाहिए। कुछ एकदम उदाहरण देती हूँ। परिचय में आपको बोला गया कि आई टेक केयर ऑफ द वर्क ऑफ अराइज केन्या। अराइज केन्या अफ्रीकन बच्चों में हम काम करते हैं, उनको भी संस्कार देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, अच्छे वैल्यूज, अच्छे लाइफ स्किल्स देते हैं, ताकि वो भी अच्छे इंसान बने। जब वो बड़े होंगे तो अच्छे नागरिक बनेंगे केन्या के लिए, और वो भी ऐसे सोचेंगे कि मैं भी मेरे देश के लिए कुछ करूं। ऐसे हमारे 100 से ऊपर सेंटर्स चलते हैं, ऐसे प्रोग्राम चलता है। तो उसमें एक मेलविन करके एक आपके जैसी, आपकी उम्र की ही होती है, फॉर्म 2 में, मैंने ग्रेड 10 में, वो घर पे थी। एक रात को उनके माँ बोल रहे थे कि जो बाहर उनके घर में एक खड्डा है, वहां पे बहुत सारे लोग गिर रहे हैं, क्योंकि बिजली नहीं थी वहां पे। तो ऐसे वो कंप्लेन कर रही थी कि कोई भी कुछ नहीं करता है, बहुत सारे महिलाएं गिर रहे हैं, रात को देर से आते हैं, उनको दिखता नहीं है। तो मेलविन ने सोचा मैं करूंगी कुछ इसके बारे में। तो उन्होंने क्या किया, सैटरडे जब शनिवार का दिन आया तो उन्होंने उनके आसपास जितने भी बच्चे हैं उनको इकट्ठा किया, और सब गए वहां पे, देखा कि हाँ ये बहुत उंडा है तो इसका हम कुछ करें। तो सबने मिलकर सोचा कि हम एक ब्रिज बनाएंगे। तो 7 बजे शुरू किया, 1 बजे तक उन्होंने जितनी भी लकड़ियां थी वो लाकर टाई करके एक ब्रिज बना दिया। उसके बाद कोई नहीं गिर रहा था। तो अगर समाज में कुछ भी ठीक नहीं है तो वो हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उनको ठीक करें। एक हमारे फुल टाइम वॉलंटियर है, उनका नाम है एडवर्ड। वो अपने गांव गए थे, तो वहां पे उन्होंने देखा कि एक सड़क है और गाड़ियां नहीं पास हो रही है। क्यों? क्योंकि एक पेड़ था जिसके रूट्स निकाले नहीं गए थे, सिर्फ ऊपर से काट दिया था। तो क्या हुआ, What he did was, उन्होंने सोचा कि ये 3-4 साल से कोई भी ये रास्ता इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो मैं कुछ करूंगा। तो नेक्स्ट डे वो जल्दी उठे, उनका जो टूल्स थे, फार्म इक्विपमेंट्स, वो लेकर आए, स्पेड वगैरह, और ही स्टार्टेड डिगिंग। वो रूट को निकालना था उनको क्योंकि 3 साल से वो रास्ते में कोई भी नहीं आ जा रहे थे, लोग चल रहे थे। तो उन्होंने शुरू किया, धीरे धीरे बच्चे भी उठे, वो भी आए, उन्होंने भी कोशिश किया। 1 बजे तक उन्होंने वो पूरा ट्री ही निकाल दिया था जो रास्ते के बीच में था, और उसके बाद सब चलने लगे। माने मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हम जहाँ पे भी है ना, वहां पे वी विल ऑलवेज फाइंड चैलेंजेस, हमेशा चैलेंजेस रहेंगे। ऐसा जीवन बहुत हार्डली होता है कि अपने जीवन में चैलेंजेस नहीं आते, लेकिन वो चैलेंजेस के सॉल्यूशन भी हमारे पास है। सिर्फ हमको जानना है कि हम क्या कर सकते हैं, 2-3 लोगों के साथ चर्चा करके कुछ कर सकते हैं क्या। एक और उदाहरण देती हूँ, उसके बाद मैं समाप्त करती हूँ। हम लोग एक गांव में गए थे 6 साल पहले। वहां पे देखा तो गांव वाले बहुत दुखी थे। तो पूछा कि क्यों आप दुखी है, तो वो बोले कि बारिश आया था तब फसल अच्छी हुई थी, उसके बाद अभी बारिश नहीं है तो हमारे पास खाना नहीं है, ऐसे एकदम मायूस थे। तो पूछा कि आप क्यों पानी को संग्रह नहीं करते, तो वो बोले कि हमारे पास कंटेनर्स नहीं है, टैंक नहीं है। तो पूछा कि क्यों नहीं है, वो बोले उतना पैसा नहीं है हमारे पास। तो हम लोगों ने सोचा कि इसका क्या
सॉल्यूशन हो सकता है। उनको पूछा अगर हम सभी एक साथ आए और सबने वो जो 50 रुपए है या 100 रुपए है, जितना भी है हमारे पास धनराशि, वो इकट्ठा करे और उससे ही हम वो टैंक ले, तो वो बोले हाँ ये अच्छी आइडिया है। तो हर शनिवार के दिन सब गांव वाले इकट्ठा होते और जितना भी उनके पास धन राशि है वो हमेशा एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है वहां पे डालते। तो ऐसे कर करके 2 साल में एक विलेज ने 100 से भी ज्यादा टैंक खरीद ली। आप सोचिए अगर हम एक साथ आ सकेंगे, हम अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सके तो कितना कुछ कर सकते हैं। उसी गांव में एक माता जी थे बहुत उम्र वाले, तो उन्होंने हमको आकर बोला कि बहुत लोग आए हैं हमको पानी का समाधान देने के लिए, आप प्लीज हमको झूठ मत बोलना, क्योंकि मैं ऐसी साल की हूँ और आज तक कोई भी हमारे समस्या को का सॉल्यूशन नहीं दे पाए। तो वी टोल्ड हर के हम कोशिश करेंगे। तो आज वो इतना खुश है, पहली बार उनके जीवन में उनके घर में एक टैंक है। तो ये प्रोग्राम 2 साल पहले शुरू किया था। आज ऑलमोस्ट 15 गांव में, उसी एरिया में गांव में ये प्रोजेक्ट चलता है और मोर देन 300 टैंक्स, 300 फैमिलीज तक हम लोग जा पाए हैं। तो समाज में बहुत काम है। हम क्यों ये शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? ये अपने लिए नहीं है। वी नीड टू gain this knowledge so that we can help others. So let us make ourselves capable enough to serve and to find solutions. हम हमारे गांव में भी अगर जाएंगे, अगर वहां पे कुछ ठीक नहीं है, कुछ कर सकते हैं तो हमको करना चाहिए। That is the only way change will come and we can make this world a better place. अगर हम हमारे वहां से ही शुरुआत करेंगे तो वही स्वामी विवेकानंद जी का कोट इंस्पायर करता है कि वी मस्ट सर्विंग सर्विस टू द पुअर इज सर्विस टू गॉड। एंड करुणा भाव से हम सेवा करें। और आप सभी अगर वो 5 ऋण याद कर सकेंगे कि हमारे जीवन में ये 5 ऋण है, तो इट विल बी ग्रेट बिकॉज you will become so humble okay, look at what everyone is doing for me and I must do something, I must also give back। ये कहकर मैं समाप्त करती हूँ। बहुत अच्छा लगा, सबको धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ बुलाया। आप सबसे मिलने के लिए हम आभारी हैं। चारों चीज लगा लीजिए। ममता भाई पत्रिका ने राष्ट्रीय हमारे आपकी नाम भी नकली है और नकली साइट के इस बार हमारे मीडिया प्रमुख हैं नवीन प्रमाण जी अपना क्षेत्र का मीडिया के प्रचार के लिए हैं। आप जानते हैं चेहरा है, लेकिन आप इस बार नए रहे हैं। हमारे मित्र यहाँ के प्रधानाचार्य आचार्य निश्चित रूप से आरती वंदना सभा में आपने जो ये मंत्र सुना है, जिस शख्सियत को आप देख रहे हैं, जो मंत्र आपको बीत गया है, उसको अनुभूत करने की आवश्यकता है। इस कार्य को इसी क्षेत्र में रखकर
आचार्य आशुतोष जी, यहाँ उपस्थित सभी आचार्यगण और विद्यालय के भाइयों बहनों छात्रों, आदेश हुआ है राजेश जी का इस संघ के कुछ कार्य के बारे में बताएं और साथ ही अनिता जी का जो कार्य है उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करें। तो हम लोग भारत में जितने भी रहने वाले हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को तो जानते हैं क्योंकि आप उसी संघ द्वारा संचालित विद्यालय के छात्र हैं, आचार्य हैं। भारत के बाहर वर्ष 1947 में भारत के 2 स्वयंसेवक को केन्या गए, वो अपने साथ संघ के आचार संघ लेके गए और भारत के बाहर 1947 में केन्या में पहली बार उन्होंने शाखा लगाई और भारत के बाहर जैसे संघ यहाँ 1925 में शुरू हुआ एक शाखा से 10-12 लोगों से और आज ये विश्व का सबसे विशाल संगठन है, उसी तरह से भारत के बाहर भी जो केन्या के संघ का बीज गया वो आज विश्व के 55 देशों में संघ की शाखा लग रही है और भारत के बाहर उनको हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम से जानते हैं। तो ये संघ का विस्तार जो है वो सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत यहाँ से जुड़ी गया और उसी के आधार पर जो संघ की अपनी कार्य पद्धति है कि शाखाओं में जाते हैं, व्यक्तिगत चरित्र निर्माण करते हैं। तो अनिता जी जो है ये है तो भारतीय मूल की, भारत इनके लिए पुण्य भूमि है लेकिन इनकी जन्मभूमि कर्मभूमि वो सब केन्या है। इनको जितना भारत से प्रेम है केन्या से भी उतना ही प्रेम है। तो वहां पर केन्या के जो बच्चे हैं जो अफ्रीकन मूल के लोग हैं वो कैसे अच्छे नागरिक बन सके, जो हम लोगों ने 5 दिनों में समाज ऋण की चर्चा की। तो समाज ऋण को चुकाने के लिए केन्या के बच्चे कैसे वहां के अच्छे नागरिक बने, इसके लिए अपने संघ की पद्धति को अनुसरण करते हुए वहां पर एराइज केन्या नाम की एक संस्था की शुरुआत हुई और वो भी एक शाखा से शुरू हुई। आज पूरे केन्या में उसकी 101 शाखाएं हैं और इन्होंने जो एक उदाहरण दिया कि समाज का कार्य कर रहे हैं तो हमको वो उनको दान देके उनको एहसान मंद नहीं बनाना है बल्कि उनके अंदर वो भाव पैदा करनी होती है कि वो स्वावलंबी बन सके। जैसे उन्होंने जो पानी की समस्या के बारे में बताया, ये गांव में पानी की समस्या की मीलों चल के लोग पानी लेके आते हैं। तो अगर कोई दान देके लगा देता डोनेशन करके, क्योंकि केन्या की हर एक देश की संस्कृति होती है, वहां के लोग उम्मीद करते हैं कि लोग आए हमको डोनेशन दें, मगर किसी को दान देके आप थोड़े समय के लिए तो उसको की सुविधा कर सकते हैं लेकिन वो हमेशा सस्टेनेबिलिटी जो है वो कंटिन्यूअस है, इसके लिए उसको खुद को स्वावलंबी बनाना जरूरी है। और इस सोच के साथ उस जिस गाँव की उन्होंने बात की वहाँ पर पानी की समस्या के समाधान के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हमने सुना है वो करने में बारिश काफी होती है लेकिन वो सफा जाता है। तो टैंक एक और इनको एक टैंक का दिया, बोला कि इस टैंक की पैसा चुकाओ, फिर दूसरा टैंक, फिर उसका पैसा चुकाओ, तीसरा टैंक, ऐसे गांव में 50 टैंक लग गए जो कि सब उनको ये भी एहसास हुआ कि ये हमारा अपने खुद का किया हुआ, तो उनका स्वाभिमान वहां बढ़ा। इस तरह से और बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाने का जो प्रयास चल रहा है केन्या से, ये अनिता जी के देख में काम शुरू हुआ और ये संघ की प्रेरणा से चल रहा है और उसमें ये लगी हुई है और वो काम अभी केन्या में चल रहा है लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि वो काम तंजानिया और बगल के देश युगांडा ऐसे देशों में भी वो काम चले, तो इसका प्रयास जारी है
हूँ कि वहाँ का तो बहुत अच्छा धन्यवाद।